پہ بہن ہے اور یہ کام اتنا لچا ہے, یہ حرکت اتنی گندی اور غلیظ ہے, تو میں چاہوں گا یہ منطقی ایجاب تک پہنچے. تو جی بہن آپ بے شک ریکارڈ کر رہی ہیں تو کر لیں. میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ ایسے لچے کام پہ, ایسے گھٹیا کام پر, ایسے بے غیرتی والے کام پر, ایسے بے شرمی والے کام کے اندر, اس طرح کے گھنونے بد کردار کام کے اندر میں ہی کیا بلکہ کوئی بھی شامل ہو تو اس کے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. نہ میں شامل ہوں, نہ میں کسی کو جانتا ہوں جو اس میں شامل ہے. اب آتی ہے دوسری بات. اب ساتھ یہ بھی ریکارڈ کرے کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر لعنت, اس کے محلے کے ہیڈ پہ لعنت, اس کے شہر کے قائد پہ لعنت, اس کے ملک کے قائد پہ لعنت, وہ جس کی بیعت میں ہے اس کے اوپر لعنت, اس کے پیدا کرنے والے پہ لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی ان سب کے اوپر لعنت ہو. اور آپ نے یہ الفاظ دروانے, جس باپ نے پیدا کیا اس باپ پہ لعنت, جس ماں نے پیدا کیا اس کے اوپر لعنت, جس محلے میں ہے اس پہ لعنت, جس طرح سے جہاں پہ وہ جاتا ہے, جس گروہ میں وہ بیٹھتا ہے اس گروہ پہ لعنت, اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور کتے کی موت آئے ان سب کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا. یہ ہے پوری سٹیٹمنٹ, یہ آپ نے دلوانی ہے. وعلیکم السلام رائس صاحب. پیاری بہن آپ ریکارڈ کر رہی ہیں, ریکارڈ ضرور کریں. یہ بھی دیکھیں مسلمان کا طرز عمل اور غیر مسلم کا طرز عمل. ایک سیکنڈ نہیں لیا اس بندے نے, کیٹاگوریکلی سٹیٹمنٹ دے دی ہے لگی لپٹی کے بغیر. آپ کو جس طرح سے کھلواڑ کی گئی مسلسل آپ کے ساتھ, آپ جب ان سے صفائی چاہ رہی تھی اور آپ نے دن کھپ گئی ہوں میں سارا پیاری دن. بہن کلپ بھی میں پتہ ہے کیا, انتہائی ہارٹ رنچنگ, یعنی دل گرفت کرنے والی, جو دل کو تکلیف پہنچانے والی بات وہ تھی جب آپ نے کلپ بھی پلے کیا اس ریکارڈنگ, آپ کو فون کال کی, وہ جو آپ کو تنگ کرنے والا کالیں کرتا ہے, آپ نے وہ کلپ پلے کیا. اس کے باوجود بھی کسی انسان کے اوپر اگر جو نہیں رنگتی تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ انسان نہیں. اور اگین میں کوشچن بار بار کروں گا کہ جس اخلاق کو وہ فالو کرتے ہیں, جس مذہب کے وہ پیروکار ہیں, جس جماعت کے وہ ممبران ہیں جسے وہ الہی جماعت کہتے ہیں, سوال ان کے اوپر اٹھتا ہے کہ آپ کا خدا آپ کے اندر خوف پیدا کیوں نہیں کرتا. یہ ہماری بہن جماعت سے تعلق رکھتی ہیں, جماعت کی کوئی بھی بہن آ جائے, ہم انہیں اپنی سگی ماں اور بہن کی طرح اگر ٹریٹ نہ کریں تو ہم کافر ہیں, ہم کافر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب نہ کرے. یہ پیاری بہن آپ کا مذہب آپ کا, لیکن آپ ہماری قوم کی ہیں, آپ ہماری بہن ہیں, آپ ہمارا خون ہے. ہم کیسے کر سکتے ہیں اس طرح سے ظلم اپنے بہن بھائیوں کے اوپر, چاہے ان کا مذہب احمدیتی کیوں نہ ہو, چاہے ہمارے پاس عیسائی بہن بھائی کیوں نہ ہو, چاہے ہمارے ہندو بہن بھائی پاکستانی کیوں نہ ہو. یہ ظلم ہے, سراسر ظلم ہے, اور یہ سفاکیت ہے, اور واضح ہے یہ کریکٹر. اور ان کا بہت ہارٹ رنچنگ تھا, بہت تکلیف دہ تھا. میں جو کل بیٹھا ہوا تھا سن رہا تھا, اور جس طریقے سے وہ کلپ پلے ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ بندہ آپ کو کالیں کر کے آپ کے ساتھ بہن اور ماں کی ایج کی خاتون کے ساتھ جس طرح سے وہ کھلواڑ کر رہا ہے, جس طرح سے وہ ڈمین کر رہا ہے, جس طرح سے ہراس کر رہا ہے, اور پھر لیگل کمپلینٹس ہیں, باقاعدہ انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے, پکڑا تو وہ جائے گا سونر اور لیٹر. اور یہ مذاق نہیں ہے. انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی کرائم کرنا, دیز آر ویری ہائی کرائمس اینڈ پیپل ول ایونچولی پے دا پرائز. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اپنے کردار کا, اپنے عقائد کا, آپ کس سے بلانگ کرتے ہیں, وہ نسبت کا سب کا جو ہے نا پول کھل رہا ہے یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ سب کو, مسلمانوں کو. ماشاءاللہ آپ نے واقعتاً ایک مثال قائم کر دی ہے. سلوٹ ہے آپ کو. شکریہ. جزاک میں اللہ اپنی بڑا صاحب. پروفائل پہ اپلوڈ کر دوں گی, اور خیر یہ پورا بیان میرا لگنا چاہیے. اور میں میں آپ لگا کو ایک دوں بات گی پورا. عرفان بھائی نے آپ نے ایک کل قسم مجھ سے جو ہے کہا نا, تھا. ایک صفائی ان سے یہ لینی ہے کہ اپنی قسم کھاؤ. میں نے یہی نہیں کہا کہ حلفن اپنا, میں نے کہا میں جانتا بھی نہیں. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, ایون کہ میں 4 بندوں کے نام لے سکتا ہوں, انہی کے اندر سے کوئی نہ کوئی ہوگا. میں ابھی نام نہیں لے رہا, پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, نکل تو آئے گا. یہ ان نون نمبر کی جو سمز ہے نا, یہ بھی بڑی فنکاری ہوتی ہیں, یو کے میں بھی چلتا ہے, ہر جگہ پہ چلتا ہے. آپ یقین کریں ایک بار میرے ساتھ بھی سین ہوا تھا, پولیس نے پکڑ لیا تھا بندہ, بالکل بندہ پکڑ لیا تھا, اور اس کے بعد میرے پاس آپشن تھی کہ میں اس کو ڈریگ کر کے کورٹ میں لے کے جا رہا ہوں کہ نہیں یہ پکڑا جائے گا, بالکل پکڑا جائے گا. اور میں پھر آپ سے ایک ڈیمانڈ ضرور کروں گا, آپ نے
وہ کہتے ہیں نا قوم کے وسیع تر مفاد میں خاموش نہیں رہنا. اس بے شرم انسان کی جو ایک ایجڈ بیمار اور باقی بہنیں جو شادی شدہ ہیں ان کے گھر توڑوانے پہ اترا ہوا ہے، اس بے شرمی کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ یہ چہرہ ہے اس کا. تب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جماعت کا کیا امیج ہوگا یا کس کا کیا امیج ہوگا، چاہے ادھر سے کوئی ہے یا وہاں سے کوئی ہے. یہ آپ کا فرض ہے دکھانا. عرفان جو بھائی کو آپ کے میں ساتھ یہ وعدہ بھیج رہا دوں کہ گی. ہماری طرف سے ہوا نا، اگر ہماری طرف سے ہوا باجی خدا کی قسم براڈ میں لگاؤں گا. آپ صرف مجھے ڈیٹیل دیجیے گا، براڈ میں لگاؤں گا، میں سامنے ٹانگوں گا اپنے رسک پہ. پھر میرا جس نے جو کرنا کر لے. ہماری طرف سے اگر ہوا ہم ٹانگیں گے. لا تعلقی کریں گے، اللہ تعلقی کا اعلان کریں گے، کھل کے کریں گے. یہ بھی ریکارڈ کر کے لگا دیں، لا تعلقی کا اظہار کریں گے، باہر نکالیں گے ایسے گندی بھیڑ کو. لیکن یہ بھی پوچھیے گا کہ آپ جانتے بھی ہو کہ نہیں. یہ آپ دے گا ان کو کیا قرآن پہ ہاتھ رکھے ہیں تو چکو بس مت بیٹھ. اور میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ مطلب قسم کھا لیں گے. عرفان بھائی نے کہا تھا کہ میں خود قرآن پہ ہاتھ رکھ پاؤں گا، تو میں ان کو ٹیگ کر دیتی ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کو تو نہیں ٹرسٹ کر سکتی. عرفان بھائی جو ہے وہ بیچ میں پڑے تھے، انہوں نے یہ کروا دیا تھا. کیونکہ اگر ایک اتنی چھوٹی سی کیونکہ میں تیرا بڑا بھرا ہاں، مینوں پتا سی میرے بھرا اس طرح دا بغیرتی والا کم کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ میں اتنے زبان دے کے آیا سا، کیوں زبان دے کے آیا کہ مینوں اپنے بھراواں تے یقین سی، کیونکہ 100% نہیں 110% یقین سی کہ میرے بھرا اس طرح دا گھٹیا کم کر ہی نہیں سکتے. مر سکتے نے کسی دھی بہن نوں رات نوں فون کر کے نہیں اٹھاندے. اے اوہی لعنتی کردار نے جڑے سیکر دے چوڑے لپٹے نے انہاں ہی کام کیتا. سیفی صاحب میں تاں زبان دے کے آیا سا، میں تاں تے قسم کھا دی باجی تو جدوں مرضی آ میرے بھرا تیرو قسم دین گے میں دینا، کیونکہ مینوں تے تے یقین سی. کرو گل. بابے وفا عرفان جٹ زندہ باد. بھائی 1122 اور عرفان جٹ صاحب کے، کیونکہ ان دونوں کی دعوت تھی. نہیں میری بات سن لیں. میں ویڈیو ذرا کر کے نا تو اس طرح آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. السلام علیکم صفیہ صاحبہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں سلام تو کر لوں نا یار. ابھی ہاں جی کر لیں. جی السلام علیکم صفیہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عرفان بھائی صرف لبنہ نے کہا تھا، پہلے ہی ہماری دفعہ بات ہو چکی ہے. آپ بہنوں کے معاملے میں آپ چاہے کتنا بھی غصہ کر لیں، بہنوں کے معاملے میں آپ کی الگ سچویشن ہے. تو میں نے جو کہا تھا اور وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے. اب آپ کی ٹرن ہے. جزاک اللہ. اس سے پہلے نا میں ایک بات کر دوں. جزاک اللہ آپ تشریف لائیں، جزاک اللہ لبنہ باجی کا وہ بھی تشریف لائیں. آپ کے ایک بات گوشگوار کر دیں، آپ نے وہ آڈیو تو لگائی ہوئی ہے. کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان کے دین کے مطابق، ان کے اسلام کے مطابق جھوٹ بولنا جائز ہے؟ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے صفیہ باجی؟ جن لوگوں کی آپ نے آڈیوز لگائی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے مطابق، ان کے دین میں، ان کے اسلام میں جھوٹ یہ چیز بولنا کل جو ہے وہ جب جائز. آپ لوگوں نے مجھے ادھر بھیجا تھا تب آپ جی کو نہیں پتا تھا. وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہمیں تو تو پتہ پھر تھا آپ انہوں نے جھوٹ صرف بولنا. ایک سیاست نہیں، والی میں میں نے صرف سمجھوں آپ سے چیز. پوچھا ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے دین میں یہ جھوٹ بولنا جائز ہے یا مجھے نہیں؟ ادھر اچھا بھیجا کالو کیوں صاحب تھا؟ میں ایک بات، ایک منٹ صفیہ جی صاحبہ مجھے اجازت دیں پلیز، مجھے اجازت دے دیں. کالو صاحب جی یو ہیو ٹو بی ریلی پولائٹ. تے آئی تہاڈی کسی قسم دا کسی قسم دی کوئی صفیہ صاحبہ اگر کوئی ہارش ورڈ یوز بھی کر دیں تے یو آر ناٹ سپوز ٹو یوز دیم. اوکے وہ ہماری بڑی ہیں، وہ کر سکتی ہیں، ایسی کوئی بس بات ٹھیک نہیں. ہے. بس ٹھیک ہے، باقی آپ لبنہ بات باجی کریں. کر سکتی ہیں، وہ ہمارے السلام کام کھینچ علیکم. سکتی ہیں اس میں. وعلیکم السلام لبنہ باجی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے. اچھا یہ دونوں آم، جی 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 کریں بات آپ کر لیں پہلے آپ کر لیں. عرفان بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی میں موجود ہوں. ہاں جی جی. آپ نے یہ کہا تھا، میں بہرحال صفیہ بہن کو لے آئی ہوں. آپ اپنا ان سے بات کر لیں، باقی بھائی بعد میں بات کریں بے شک. جی صفیہ بہن آپ بتا دیں عرفان بھائی کو جو عرفان کہنا بھائی چاہتے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، باپ پورا کر دیں. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہ ہے کہ جو عرفان صاحب نے بات کی تھی آپ کے ہیں. ساتھ بھائی آپ پہلے
एक सेकंड है, आप इरफान भाई नहीं नहीं लुबना बाजी, अब जो किया था वो जरूर हुआ था, पूरा करेंगे। यही दो हमारे भाई हैं जिन्होंने ये नहीं, वो ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई लुबना मसला साहबा नहीं है। एक मिनट मैं आपसे करने दे जानना करने दे चाहूंगा। करने दे हाँ करने दे मैं जी कर जी। देता हूँ यार, अगर मैं भाई एक मिनट आप इजाजत दे दें, इजाजत बहस दे दें में लुबना साहिबा। जाएंगे तो जी बड़ी जी मार बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। जाना। एक मिनट यार, आप 1 1 2 हमारे 2 साहब प्लीज भाई माइक हैं, म्यूट करो। हमें ऐसा कोई मसला नहीं। जी अगर जी आप लुबना बहस में साहिबा, जाएंगे- एक मिनट मैं आपसे पूछना, एक मिनट सॉरी, मैं आपसे, आप वाकई आप भी, मैं आपसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि जो इरफान जट साहब से सफ़िया साहिबा की डिमांड थी ना, वो ये थी कि आपने 2 बंदों के वादे लेके देने हैं। एक 1122 साहब थे और एक सैफ़ी साहब थे, ठीक है। 1122 साहब इधर बैठे हुए हैं और इरफान जट साहब ने उनको बुला के बिठाया इधर, जी और बिल्कुल, सैफ़ी साहब को भी इरफान जट साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि यही जिम्मेदारी सफ़िया साहिबा ने उनको दी थी जी कि बिल्कुल, आपने इन 2 बंदों से बात करवानी है। अब 1122 साहब इधर मौजूद हैं, मैं इरफान जट साहब को कहूँगा, इरफान जट साहब आपने जो दूसरा बंदा बुलाना है वो भी बुला लें। जी बिल्कुल, बुलाएं। जी इरफान जट, जी जी कोई बात नहीं, पहले एक दो से तो बात कर लें बाजी ठीक है लुबना, ठीक है, दोनों से वन बाय इकट्ठे- वन नहीं बाय नहीं, वन, ठीक है। आप सिर्फ दूसरे भाई को बुलाएं, फिर बात करते हैं। आप किसी अच्छा एक नहीं को नहीं, वो बुलाएं। आ और रहे मैंने हैं तो नहीं आ रहे हैं, बात मुझे करनी थी ना 1 इरफान मिनट भाई, मैंने तो नहीं इनसे बात करनी थी, वो नहीं तो नहीं, आप बीच में आपने पड़े कोई थे ना। बात नहीं करनी, आपने मेरी बात इरफान सुनिए, भाई ने कहा था आपने कि कोई मेरी बात नहीं, जिम्मेदारी है। यार बात क्या कहते हैं, बात प्यारी बहना जिनसे बात करनी है वो आपको इधर ही बैठी हुई, आप जा तो नहीं रही, उनसे बात तो करें ना बात तो प्लीज। सुन ले मेरी इरफान मेरी भाई बात तो आपसे सुन बात ले करनी मेरी है बात। सिर्फ। नहीं, मैं अच्छा नहीं नहीं, परसों मैं 12 से घंटे बात खपी कीजिएगा, मैं हूँ, नहीं करता आपसे अब नहीं बात, खपूंगी। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मेरी बात, मुझे बात तो करने दे ना, बात तो करने दे। हमने देखे कल भी बराड़ लगाई थी और इसी काम के लिए लगाई थी, वादा वफा करने के लिए लगाई थी, ठीक है, और इरफान जट साहब के कहने पे लगाई थी, ठीक है। और आज भी जब उन्होंने, कल परसों की बात है ये, जब उन्होंने ये बात की थी तो मैंने कहा था कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इरफान जट साहब ने कहा है कि इस तरह कसम देनी है। मैंने कहा इसी तरह दूंगा, क्यों क्यों कि ये इरफान जट साहब के मुंह से निकल गया था, उन्होंने कहा था कि ये बहन का मामला है, आपने इस तरह करना है, मैंने कहा इसी तरह करूंगा, जैसे आप कहेंगे। अब बात ये है कि मुझे मौका दिया जाए, कि एक तो थोड़ा सा मुझे टाइम दिया जाए और दूसरा मौका दिया जाए कि मैं अपने बिहाफ पे अल्लाह वाला साहब जो है उनको बोलूं कि वो वीडियो प्ले कर दें जो सीकर साहब ने अपना क्या लें कि रिकॉर्ड करवाया, जो कि इरफान जट साहब ने भी एक शर्त रखवाई थी कि ये आप करवाएं, उसके बाद हम अपना वादा पूरा करेंगे, वफा करेंगे, अबू अल वफा बन जाएंगे। तो ये अभी इरफान जट साहब का वादा पूरा होने से पहले, जी जी, अबू अल सफिया बाजी वफा से ये ये कह लें पूछी कि बस कि सफिया बाजी ये जो अपनी वादा जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, तो आप पर ये जिम्मेदारी है कि आपने इसको अपनी आईडी वो पर मैं करूंगा इंशाल्लाह। वो एक इसलिए लुबना बाजी 1 मिनट रुक जाएं, लुबना बाजी आप आपकी बारी नहीं, अब आप म्यूट करें। सफिया बाजी मेरा एक दोस्त अभी 1122 आपको जो वादा किया था वो करेगा, आप ये इसकी रिकॉर्डिंग अपनी आईडी पे अपलोड करेंगी। दूसरे भाई इंशाल्लाह कल आपको जिस टाइम अभी दे दे, लेकिन आपको ये अपनी आईडी पे अपलोड करना होगा जो 1122 अपना वादा वफा करेंगे। जी खोले माइक जरा। जी जरूर। आपने ये रिकॉर्डिंग करनी है जब भी मैं स्टार्ट करूंगा अपना, ठीक है, और उसके सरकार बाद भी उन्होंने वो कह आपने दिया है रिकॉर्डिंग- हाँ कि ये क्या दोबारा हाँ जी, ठीक है ठीक है। अभी ये है कि अब्बासी साहब, आप जो है वो वीडियो आपके पास है दूसरे मोबाइल में? हाँ जी मैं चलाता हूँ। हाँ जी, चलाना है, और जहाँ पे इमरान साहब या मैं कहूँ वहाँ पे रुकना भी है। ठीक हो गया, ओके, तैयार हैं, फिर शुरू करें। रिकॉर्डिंग ऑन कर लें जो भी भाई नीचे रिकॉर्डिंग अगर ऑन कर किसी ले को- कोई दोस्त ना, सफिया साहबा ने तो कोई कर भी ली नीचे- होगी, हाँ जी। उन्होंने तो कर ही ली होगी, कोई और दोस्त भी साथ कर लें। होस्ट भाई आप ही उसे स्टार्ट कर लें साथ अपने। नहीं इनके पास तो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी ना, वो टाइम नोट कर लें सिर्फ कि हम ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਦੋਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। बहन है और ये काम इतना लुच्चा है, ये हरकत इतनी गंदी और गलीज है, तो मैं चाहूंगा ये मंतकी इजाब तक पहुंचे। तो जी बहन आप बेशक रिकॉर्ड कर रही हैं तो कर लें, मैं हल्फन ये कहता हूँ कि ऐसे लुच्चे काम पे, ऐसे घटिया काम पर, ऐसे बेगैरती वाले काम पर, ऐसे बेशर्मी वाले काम के अंदर, इस तरह के बद किरदार काम के अंदर वासे भाई रोकना, इस बंदे ने कसम नहीं खाई
ओ यार कालू भाई इस उसकी बंदे ने रिकॉर्डिंग चला के कसम नहीं खाई, ये देख लें आप, ये अल्फाज नोट कर लें, उस बंदे ने कसम नहीं खाई। कालू भाई उस बंदे ने जो भी किया है ना वो हमारा मुद्दा नहीं है, उसको हमारा मुद्दा है, क्यों नहीं मुद्दा है? ये सफिया बाजी को हम गोश्तगवार को आ दें कि इस बंदे ने जो है ये जो हाँ, बस ऑडियो ठीक है है, ये बात इसने यहाँ पे खत्म होगी कसम ना, यहाँ पे नहीं खाई। हाँ, नहीं खाई, कसम नहीं खाई, अगली बात करें, हम फिर भी वफा करेंगे, अगली बात आगे चलने दे, आगे चलने दे। मैं ही कसम क्या नहीं खाई। बल्कि कोई भी शामिल हो तो उसके मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। ना मैं शामिल हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ जो उसमें शामिल है। अब आती है दूसरी बात। अब साथ ये भी रिकॉर्ड करे कि जिसने ये काम किया है उसके ऊपर लानत, उसके मोहल्ले के हेड पे लानत, उसके शहर के कायद पे लानत, उसके मुल्क के कायद पे लानत, वो जिसकी बैत में है उसके ऊपर लानत, उसके पैदा करने वाले पे लानत, तमाम। अरे रोके, ये इसने कहा है कि जिसकी वो बैत में है, ठीक है। अगर जैसे कि आपको वीडियो में इसी एंड पे आपको अल्फाज मिल जाएंगे कि उन्होंने बोला है कि अगर वो हमारी यानी कि हमारी साइड से, उनके ग्रुप में से ये किसी बंदे ने किया है तो हम उस पे भी लानत भेजते हैं। और वो बंदा जिसकी बैत में है, वो किसकी बैत में है ये आप सोचिए, ये आप लोगों के लिए सवाल है। आप सब भाई जो नीचे बैठे हुए हैं ना, 62 लोग जो है, ये अभी आपको आगे मिलेंगे, ये अल्फाज मिलेंगे कि वो बंदे अपने भाइयों पे भी ये बात लागू कर रहे हैं। यही बात ये जो अभी की है ना उसने, कि बैत में है, जिसकी बैत में है, किसकी बैत में है पूरी उम्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत पे। और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट लानत डाली है, इनडायरेक्ट लानत डाली है उसने, नाउज़ुबिल्लाह। अभी देखिएगा कैसे डाली है। ये अब गलत बात हो रही है। ये पूरी वो सुन ले, सफिया साहब, बात नहीं हो रही बाजी, बात करने दे प्लीज। रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी रिकॉर्डिंग चलने दे। जी। अभी ये इसने जो लानत डाली है, ये शुरुआत लानत की है कि महल्ले वाले पे लानत, यानी कि इमाम पे लानत, उसके जो महल्ले का इमाम है उस पे लानत, फिर उसके बाद उसने कहा है कि उसके शहर वाले पे लानत, फिर उसके कायद पे लानत, यानी कि कायद मिल्लत जैसे इस तरह शबाज शरीफ है उस पे लानत, फिर उससे बड़े यानी कि इमाम काबा पे लानत इसने की है। और फिर उसने हाथ ही कर दी है कि जिसकी बैत में हो आप, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत में हो के उस पे लानत कर रहा है। अब कोई बंदा जो है वो मुसलमान है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत में है, उस पे वो बंदा लानत कर रहा है। ये बंदा जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मेरी वहां पे डाल दो अलैहिस्सलाम, ये बंदा यही बंदी है। अभी आगे चलाएं जी, वीडियो चलाएं आगे। हेड पे लानत, उसके शहर के कायद पे लानत, उसके मुल्क के कायद पे लानत, वो जिसकी बैत में है उसके ऊपर लानत, उसके पैदा करने वाले पे लानत, तमाम लानत करने वालों की सब के ऊपर लानत हो। और आपने ये अल्फाज दरवाने, जिस बाप ने पैदा किया उस बाप पे लानत, जिस माँ ने पैदा किया उसके ऊपर लानत, जिस मोहल्ले में उस पे लानत, जिस तरह से जहां पे वो जाता है, जिस ग्रोह में वो बैठता है उस ग्रोह पे लानत, और इनको मरते वक्त कलमा नसीब ना हो और कुत्ते की मौत आए इन सबको जिन्होंने आपके साथ ये काम किया। ये है पूरी स्टेटमेंट। ये आपने वालेकुम सलाम जी इतनी थी बस। नहीं, ये इतनी नहीं है। आगे चलाऊं? आगे चलाएं। यहाँ पे आगे जो सुने, म्यूट करें। यहाँ पे एक मिनट बाजी जो मैं जा रही हूँ, मुझे पता है जहाँ तमाशा होना था, लुबना मैंने आपको बता दिया था जहाँ तमाशा होना है। परसों भी यही सारा दिन ये काम होता रहा है। अरफान भाई स्टेटमेंट दिया, इसको भी देने देना। बाजी सफिया एक मिनट रुक ये जाए। जो सब कुछ ऐड कर रहे हैं, ये सारा कुछ, ये परसों तो उसने क्यों ऐड किया? सारा दिन ये सियासत आप लोग इस पे करें, बहनों पे ये सियासत करवाएं आप लोग, बहुत शुक्रिया। तो इस पे करें, बहनों पे ये सियासत करवाएं आप लोग। नहीं सियासत नहीं कर रहे, वो गए बस। मेरी बात सुने, अभी हो गया। कोई सियासत नहीं कर रहे। अभी इसके बाद हमारा वही काम जो आप चाह रही थी, इरफान जट साहब से आपने डिमांड की थी, वही करेंगे, हम भी वही करेंगे।
हम लंबी आप नहीं बहस तो पे अभी तो नहीं जाते रिकॉर्डिंग भाई, लेके लंबी बहस पे अभी नहीं आप किस जाते। चीज का जी उनको अभी- बुलाएं, अभी अपनी जाके- स्टेटमेंट ले इरफान भाई, बुला लें। इरफान साहब इरफान जाट साहब म्यूट मेरी करें। बात सुने। लुबना साहब आप मुझे बताएं क्या मसला है ये जो मैंने मेरी अल्फाज पहले बोले हैं, बात मैंने सुने कोई- भाई, जी, अगर बताएं, आप बताएं। मेरी बात सुन सरकार लेंगे ना साहब तो कर लें, मामला मैं हल आपकी हो बताऊं। जाएगा। पहले भी जी, उनकी जी। तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, मैं उनको लेके आई हूँ। ठीक है। अगर आप ये ठीक है। चाहते हैं कि आराम से मसला हल हो ठीक जाए, है। आप ज्यादा लंबी जी, जी। बात ना करें। सिर्फ जो इरफान भाई देखे, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रही, उन्होंने कहा है कि सैफी और आप हलफ दे दे। जी दैट्स बिल्कुल देंगे देंगे नहीं, चलो दे सरकार दें, साहब चले आप then ऐसा करें कि okay। बाकी बातें छोड़िए, आप हलफ दे दें। बिल्कुल नहीं, 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 बिल्कुल। नहीं, 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 अभी नहीं, देखिए, मेरी बात वो सुन ले। स्पीकर क्या करता वासे है, भाई मैं फलाना एक क्या मिनट में करता मेरी है, बात सुन ले, हमें किसी सुन ले, सुन ले, की कोई बात मैं सुनने की एक जरूरत नहीं मिनट है। में एक मिनट सुन ले मैं एक मिनट में उसी टाइम ये हलफ दे सकता था, ठीक है। लेकिन जिस दिन इन्होंने पहले देखिए- दिन सुन ले मैंने क्यों नहीं दिया मैंने लोगों को भी तो दिखाना था ना कि ये किस हमें- हद तक जा सकती हैं। लुबना साहब आप बताएं अभी जो उसने लानत दिलवाई है उम्मत मुसलमान के लोगों पे कि जो वो अगर उसने, मैं इसीलिए पूरी ऑडियो चलवा रहा था कि इसमें आगे वो अपने भाइयों पे भी बता रहा है ये बात, ये लागू अपने भाइयों पे भी कर रहा है ये लानत, ठीक है। मैं इसलिए ये बताना चाह रहा था, ये मैं बात वादे करना चाह रहा था कि मैंने ये भाई आप सफिया साहबा को बुलाएं। और यार सुन ले मेरी बात। भाई सुन लो ना, देखें। तुम भी सुन लो मेरी कुछ। मेरी गल यार, please, उसको बात मेरी गल करने भाई सारे आप सुन बहुत लो ना, बोलते हैं, टूटू को बात माजरत करने चाहती दो हूँ, यार। आप बात इतना सुन ले, बोलते हैं, मेरी हमें बात नहीं सुन। समझ आती। Sorry, यार एक sorry, मिनट sorry। गल नहीं सुन सुनना लो, चाहते। जिदू अगला नहीं, बंदा मेरी दिया गल मुख्तसर करो ना, आपको लंबा ना मुकम्मल खिंचो। मैं मुकम्मल नहीं कर रहा, मैं छोटा करांगा। सॉरी मेरी बात भाई उन्होंने आप बुलाओ। छोटी Please, बात करते मेरी नहीं है, बात तो हमें सुन हमें लेना, इतना बात नहीं सुन ले, सुनने बात की सुन ले। आदत। नहीं बात सुन ले। अभी इतनी सी बात है अगर ये जो अभी हमने की है ना, ये काम अगर हम ना करते ना तो मैंने तो जिस तरह मैंने लानत डालनी है ना, वो लानत मेरी सारी सफिया साहबा ने ऊपर बैठ के रिकॉर्ड करनी है और अपनी आईडी पे अपलोड करनी है ताकि वो बिल्कुल, सीकर आप देखे, आप ठीक है। देखें, ताकि वो अभी सीकर आप कर देखे। दें, वो अभी बैठी जो रिकॉर्ड उसने- करनी है, जो सुन ले, भी सुन ले, रिकॉर्ड सुन तो करेगा। लेना, भाई मेरी बात आप सुन ले। नहीं, सॉरी मेरी बात माजरत तो सुन चाहती ले, हूँ, please। आप बहुत बोलते मेरी हैं। बात तो सिर्फ सुन ले, इतनी बात है, छोटी सी बात है, तो सुन ले। आप अपनी सिर्फ छोटी बात सी सुन। बात है, बाकी सारी छोटी सी गल्लां बात छੱਡ है। 112 भाई एक मिनट खामोश बिल्कुल, हो, एक मिनट खामोश हो, ठंडे बाकी दिल नाल बातें सुनो। सब खत्म कर दे, बाकी बातें सब लुबना खत्म बाजी कर दे। आप बात कर लें। 112 भाई एक मिनट खामोश हो गए तो ठंडे दिल ना सोचो, तुम करन की डे आप ही समझ आ जाएगी। सफिया बाजी आप ऊपर आए। अगर उनको लेना है तो उनकी तबीयत पहले सेट नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से मना के लेके कुछ आई हूँ। नहीं, हम कौन सा भाई यहाँ पर कोई नहीं ऑपरेशन नहीं, थिएटर में है। वो पहले ही अपसेट है, परेशान है अपनी। अल्लाह ताला उनको शिफा दे। ना करें सीकर तो के बारे में अगर आप कोई कर बात रहे अच्छा हैं, अच्छा भाई, गल सुनो, एक आप मिनट कर यार, रहे हैं एक मिनट परेशान। मेरी गल सुनो प्लीज, मेरी गल सुन लो। मैं लुबना ਸਾਹਿਬਾਨ यार देखो ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ सफिया बाजी आप ऊपर आए, हाँ, रिकॉर्डिंग करें। सफिया आप ये कौन सा नए सफिया ड्रामे ਸਾਹਿਬਾਨ शुरू ਉੱਤੇ कर दिए ਬੁਲਾਓ आपने अब? ਤੇ 112 आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, उससे रिकॉर्डिंग करें, अपना हलफ लें। आप यार एक वहाँ मिनट पर आप गल अपनी- सुनो, नहीं बोलना यार। लुबना बाजी आप खुद इंसाफ की बात करें कि इन्होंने 3 या 4 मिनट की वहां पर रिकॉर्डिंग की है, यहाँ पर इनसे 1 मिनट नहीं सुना जा रहा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ वहां ਮਿੰट पर ठहर जाओ, जिसकी एक मिनट बैत में ठहर है जाओ। उस पर लानत और ये लानत और वो लानत। अच्छा यार तो कालों बैत में साहब एक किसकी हम मिनट सब ठहर जाओ, एक मिनट ठहर हजरत जाओ। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत में। तो लुबना बाजी उनको कहें ऊपर आकर जो आपने लेना है ना हलफ वो ले जाएं। ये लेकिन रोज रोज का जो है ना देखें, हमारे ऊपर ड्रामा ना शुरू करें। तो बिल्कुल ठीक बात है, हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। एक बात है, वो ऊपर आती हैं सिर्फ एक शर्त पे, आप अपनी बात मुकम्मल करें। हमने किसी और टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करनी, दैट्स इट। कौन सा यहाँ पर खत्म नबूवत खोली है, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो आपने हलफ दिलवाया था वो ये है और हमारी तरफ से ये ले लें। लेकिन आप 1122 भाई वो भी हलफ ना सुनाएं, आप इनको जो है ना अपना हलफ दे रहे हैं। सिर्फ अपना दे, हम मेरी किसी बात को सुनो, सुनाने मेरी की बात सुनो, जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 मिनट बेशक वो नीचे सर मुझे म्यूट क्यों किया जा रहा है? म्यूट कर रहा है यार, की हो गया? गल करन दे ਉਹਨੇ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਐਵੇਂ ਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਵੋ। हाँ मेरी बात सुने, अगर मेरी तरफ से कोई भी यार ये माइक को म्यूट कर रहा है कोई, आगे आपको ओ नोटिफिकेशन यार मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो सफिया साहिबा को ऊपर आने दो, उसके बाद बात करेंगे। उसके उनको नीचे बैठ के भी मेरी बात तो पूरी सुन लेने दे। वो ऊपर यार आएंगे, वो सफिया कहेंगे, साहिबा मेरे पास थोड़ा टाइम है। अब लुबना मेरी साहिबा बात का नहीं मामला ही सुन नहीं है, 1122 साहब लुबना साहिबा का मामला ही नहीं है। नहीं आप मैं उनको मैं क्यों बता अपनी रहे हैं? बात करूंगा, ये मैं सफिया साहब से बात करूंगा। हाँ तो फिर बात ये है कि तो मेरी मैं बात सुने। अपनी बात भी नहीं कर सकता। हाँ मेरी बात भी नहीं आप कर सकता। आप कर सकते हैं,
आप कर सकते हैं, तो मुझे लेकिन करने तो दें, लेकिन मैं करने तो आपको दें ना। यार आप 1.5 घंटा हो गया बात कर रहे हैं, आपकी वजह से वो नीचे चली गई हैं। तो आप 1 मिनट माइक म्यूट करें। मुझे बताएं, मुझे एक लफ्ज बताएं कि जो मैंने उनकी डिसरिस्पेक्ट की हो, आपने नहीं कोई गलत बात की हो। कोई नहीं मैंने की। कब कहा है आपने गलत बिल्कुल किया? की। मैंने कहा कि आपने गलत गलतफहमी किया। का मैं शिकार ये हो कह रहे रहा हूँ हैं कि किसी सिर्फ किस्म की। एक दफा उनको ऊपर आ लेने दें, एक दफा ऊपर आ लेने दें, आराम से मैं इखलाक के साथ हाँ जी आराम से बात करते हैं, उनको ऊपर आ लेने दें। क्या मसला है यार? जी, लुबना उनको ऊपर, बाजी सफिया अगर नीचे सुन रही है तो प्लीज ऊपर आ जाए, हम हाँ। रिकॉर्डिंग कराने लगे, आप ऊपर आकर रिकॉर्डिंग कर सफिया, फिर बात खत्म। एक सेकंड सफिया, 1 सेकंड ऊपर आ जाओ। अगर ये मेरी पहली नई बात सुन रिकॉर्डिंग ले, मेरी करेंगे बात मैं सुन भी ले। चली जाऊंगी, आप भी चली जाना। यार मेरी बात सुनने, जब तक मुझे 2 मिनट में मांग रहा हूँ कि सिर्फ मुझे 2 मिनट बात कर लेने अच्छा दें। यार बात नहीं, सुने, 1 1 देखें 2 भाई, मेरी बात आप सुने, ही मेरी 2 बात मिनट एक भी मिनट आपको नहीं लुबना मिल साहबा, सकते, एक सॉरी। मिनट लुबना साहबा मुझे इजाजत दें, मुझे 1122 साहब, आप किसी की ब्रॉड पे नहीं बैठे हुए, आपकी अपनी ब्रॉड है, आपने इधर इजाजत नहीं लेनी किसी से। आपने अगर किसी से इजाजत लेनी है तो वो सफिया साहब है, ठीक है? बात तो कर, हाँ, नहीं, मेरी बात आप तो उनको सुने ना, ऊपर तो आने दें। मेरी नहीं, बात नहीं, ऐसे नहीं। मुझे बात क्यों नहीं करने दी जा रही? मुझे पहले इस बात का जवाब दे दे, फिर मैं हल देता हूँ। आप माइक म्यूट मैंने करें, कौन सी माइक म्यूट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं, मैं आप सफिया साहबा ऊपर तशरीफ लाएं प्लीज। सफिया साहबा को ऊपर आ लेने। आपने अगर इजाजत लेनी है तो सफिया साहब ने किसी और से इजाजत नहीं लेनी। अब सफिया साहबा आ गई हैं, अब इनसे बात करें, और बंदा प्लीज कोई माइक अनम्यूट नहीं करेगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं तो मुझे फिर ब्रॉड बंद करनी पड़ेगी, यही मैं कर सकता हूँ। 1122 साहब, आपने सफिया साहबा से बात करनी है, उनसे इजाजत लेनी है, प्लीज चलें। ठीक है जी। हाँ जी, मोहतरमा सफिया साहबा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमेशा आपको कभी भी आप ये रिकॉर्ड निकाल के देख लें, कभी भी आपको आपके साथ कह लें कि कोई बदतमीजी से अल्फाज नहीं बोले, कभी आपको कोई गाली नहीं दी, और ना ही कभी आगे दूंगा, और ना ही कोई कह लें कि इससे पहले कभी सोचा है कि आपको गालियां दूंगा। ठीक है, आपसे हमेशा बात की है, रिस्पेक्ट से की है। ठीक है, हमेशा बात की है तो आपको ऐसे ही किया कि जैसे मैं एक नॉर्मल कह लें कि घरेलू औरतें या एक शरीफ औरतों को जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैं उतनी रिस्पेक्ट आपको देता हूँ और हमेशा देता रहूंगा। मुझे ये बताएं, क्या मुझे ये हक नहीं है कि मैं 2 मिनट अपनी बात करके और उसके बाद अपना हल रिकॉर्ड करा दूं? बता दें। मैं इस बात में नहीं जाना चाहती हूँ कि कौन मुझे कितनी रिस्पेक्ट देता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। मैंने परसों सारा दिन आपकी ये सारी बातें सारा दिन सुनी हैं। मैंने ये भी कहा था कि जब बहनों का मामला आ जाता है तो उसके ऊपर जो है सियासत नहीं करते हैं। आपने जो है वो सीकर का गला दबाना है, उसको मारना है। मेरी तरफ से जो मर्ज़ी करो, डायरेक्ट होके करो, मुझे यूज़ ना करो। मुझे आप लोगों ने उधर भेजा, मैं वहाँ पर गई हूँ, मैं 12-13 मिनट में नीचे उतर कर काम से फारिग हो गई हूँ। अब फिर आप लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं अब फिर से ये सारी बातें सुनूं। तो इरफान भाई ने उस दिन कहा था कि प्यारी बहना आप जाके ये करके आए, फिर मैं इनसे कुरान के ऊपर हाथ रखवा के ये हफ्या दूंगा। अब मुझे ये बता दें इरफान भाई, आप जो है क्यों नहीं बात कर रहे हैं, कितनी देर लगती है इसके अंदर? कि मेरी बात सुने, उसको 1 मिनट 2 मिनट दे दे, वो आपको इधर ही कसम ना उठाएगा तो फिर कहना उसको दोबारा अपनी सफाई में कुछ कहने तो देना। हाँ, जैसे सीकर में मेरी बात सुने, ऐसे नहीं 2-3 मिनट। आपसे हमेशा बात की है, रिस्पेक्ट से की है। ठीक है, हमेशा बात की है तो आपको ऐसे ही किया कि जैसे मैं एक नॉर्मल कह लें कि घरेलू औरतें या एक शरीफ औरतों को जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैं उतनी रिस्पेक्ट आपको देता हूँ और हमेशा देता रहूंगा। मुझे ये बताएं, क्या मुझे ये हक नहीं है कि मैं 2 मिनट अपनी बात करके और उसके बाद अपना हल रिकॉर्ड करा दूं? बता दें। मैं इस बात में नहीं जाना चाहती हूँ कि कौन मुझे कितनी रिस्पेक्ट देता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। मैंने परसों सारा दिन आपकी ये सारी बातें सारा दिन सुनी हैं। मैंने ये भी कहा था कि जब बहनों का मामला आ जाता है तो उसके ऊपर जो है सियासत नहीं करते हैं। आपने जो है वो सीकर का गला दबाना है, उसको मारना है। मेरी तरफ से जो मर्ज़ी करो, डायरेक्ट होके करो, मुझे यूज़ ना करो। मुझे आप लोगों ने उधर भेजा, मैं वहाँ पर गई हूँ, मैं 12-13 मिनट में नीचे उतर कर काम से फारिग हो गई हूँ। अब फिर आप लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं अब फिर से ये सारी बातें सुनूं। तो इरफान भाई ने उस दिन कहा था कि प्यारी बहना आप जाके ये करके आए, फिर मैं इनसे कुरान के ऊपर हाथ रखवा के ये हफ्या दूंगा। अब मुझे ये बता दें इरफान भाई, आप जो है क्यों नहीं बात कर रहे हैं, कितनी देर लगती है इसके अंदर? कि मेरी बात सुने, उसको 1 मिनट 2 मिनट दे दे, वो आपको इधर ही कसम ना उठाएगा तो फिर कहना उसको दोबारा अपनी सफाई में कुछ कहने तो देना। जैसे सीकर में मेरी बात सुने, ऐसे नहीं 2-3 मिनट।
बाजी मेरी बात इतनी नहीं जितनी उसने लंबी कही है ना कि बाजी ये सारा कुछ जाके सुनाना, आप भी 2 मिनट सुन लें। ये जो मैं बात गलत नहीं कर रहा हूँ, ये हक सच की बात है। जो उसने पहले हलफ दे जो उसने बाद में जो तकरीर की है ना, वो 2 मिनट आपको सुननी पड़ेगी मेरी प्यारी बहना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये चीज अभी सुने, मैंने अगर ये जो उसने हलफ दिया था ना, वो जो शॉर्ट हलफ था पहले, ठीक है, लान थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत में है, उस पे लानत डालने का उसने जो बोला था, अगर वो ना बोलता तो ठीक है, ये इतना मसला आना ही नहीं था। आपने छोटा सा हलफ लेकर आना था। मैंने खुदा की कसम यही सोचा हुआ था कि आपने अगर उससे एक मुहज्जिबाना, एक शरीफाना, एक नस्ली इंसान वाला रवैया दिखा के अगर उसने हलफ दिया होता, तो मैं आपको वैसे ही, जैसे आपने मुझसे मांगा था, मैं वैसे ही करता, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, तो मैं इसलिए ये बात पहले लोगों के कानों में लाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना हलफ कहने के देना चाहता हूँ, और जब मैं अपना हलफ दूंगा तो फिर मैं वही तर्ज अमल इख्तियार करूंगा जो सीकर ने किया, ठीक है। फिर अगर तो आप ये कह लें कि तर्ज अमल को पसंद करती हैं, क्योंकि ये आपने प्रोफाइल पे भी लगाया ये वाला तर्ज अमल लान तान वाला, तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल में लगाया है तो क्या आप मेरा भी लगाएंगी? और अगर मेरे पे कहीं पे भी फतवा लगा तो आप जिस तरह सीकर को भी उसकी बात नहीं सुन पा रही, उसके ऊपर गला दबा दो, उसका जो मर्जी कर दो, इसी तरह आप कहीं पे मेरे खिलाफ ब्राड़ तो नहीं लगाएंगी, या अगर कोई लगा के बैठा होगा उसकी सपोर्ट तो नहीं करेंगी। आप समझ आई, मुझे अब समझ आ गई, मैं बिल्कुल समझ आ गई है, मुझे समझ आ गई है, बिल्कुल सही है। मैंने अपना मामला अल्लाह को दिया है। इम्तियाज बाजी अब बात तो सुन ले, अल्लाह को वो हलफ देने लगा तो अपनी बात अंदर शुरू करो। इसने जो करना है ना, सैफी भाई से सफिया बाजी सैफी भाई का हलफ बयान करें। सैफी भाई हलफ दो अपना। सैफी आपकी मर्जी है। वालेकुम सलाम, आपकी मर्जी है। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं बात सुन ले मेरी। पहली बात तो ये, मैं ना बीच में नहीं जाता किसी भी और बातों से। साफ डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है बाजी सफिया की तरफ से, कि ये एक बंदे को तो वहां पे बैठ के इतना इन्होंने टाइम दिया और उसने खुल के बात की है और ये चुप करके सुनती नहीं है। जिसको भी उसने लानते डाली हैं पैदा करने वाले पे या पैदा करने वाली पे या बैत में जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जो भी उसने किया है वो अल्लाह उससे पूछेगा। मैं तो उसको पहले दिन से ही मुलहद कहता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बंदे पे। और मैं इस बात पे हैरान हूँ हलफ देने से पहले कि ये बाजी जो हैं इनका शक सिर्फ हम पे ही क्यों हुआ है, हम 2 लोगों पे ही क्यों इनको शक हुआ है। मतलब कि इन्होंने सीधा हम लोगों पे शक कर दिया कि ये लोग ही करते हो और पुलिस में चलेगी। हलफ मैं ये देता हूँ, देखें बात सुने। नहीं, एक मिनट कानून साहब उनको जवाब ले लेने दें यार, जवाब तो दे लेने दिया करें यार, आप सारे यार जबरदस्त कानून साहब उनको जवाब ले लेने दें। सैफी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, देखें उसकी वो भी चेक करना चाहिए कि आपको ये 2 बंदों पे ही क्यों शक हुआ है। सफिया साहबा तहकीक करांगे। मैं करता हूँ बात यार, मुझे बात कंप्लीट करने दो यार, क्यों काले कर दे। और मैं देने लगा हूँ यार, अल्लाह का वास्ता है यार, ले रहे हैं हलफ या नहीं ले रहे यार। सैफी यार शुरू कर अच्छा क्या बाजी, हाँ शुरू कर दफा यार बात तो मैनू बोलन तो दे, मेरे लफज फिर मेरे इधर उधर हो जाते यार। उस बंदे ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਕਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੋਲੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੋ ਯਾਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, क्यों ਵਿੱਚ बोल रहे हो ਤੁਸੀਂ? भाई देखिए ना तो सीकर की बराट है ना उनके ग्रुप की बराट है जो सफिया बाजी यहाँ पर बैठ कर 1 घंटा आपकी तकरीर सुन। यार मैं वही खत्म करने लगा हूँ, बात सुन लो। मैं कलमा शहादत पढ़ के बात सुन ले, 12 मिनट ऊपर थी। बात सुन ले बाजी, बात सुन ले आप। देखें मैं कलमा शहादत पढ़ के यार सैफी साहब जो आपने पहले सवाल किया उसका जवाब तो ले लें यार। चुप कर तू मसला पाला जो कसम चुकन लगा यार मुबशर। एक भाई तुसी बड़ा बोलन रहे हो यार, सारे ਉਹਨੂੰ कसम देन दियो, गल खत्म करो यार। जट साहब बैठे हैं, जट साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, तो जट साहब ने ये बात अपने सर पे ली है, तो मेरे लिए इनकी इज्जत और तकरीम जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। बाकी मैं बाजी को सीधा बता रहा हूँ कि मैं ये इन्होंने कहा कि बहन की दरख्वास्त, मैं इनको बिल्कुल बहन नहीं समझता, बिल्कुल मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं इनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ, ठीक है। मुझे इनके करैक्टर की आज तक समझ नहीं आई। दूसरा, मैं फिर वही मेरा सवाल है कि इन बाजी ने सिर्फ 2 बंदों पे, इतनी बड़ी टिकटॉक है उस पर 2 बंदों पे ही शक किया इन बाजी ने और पुलिस के पास चले गई हैं, फिर ये दरख्वास्त लेकर इधर आ गई हैं। इसके पीछे क्या मामलात हैं,
कौन सी साजिश है जिनका ये हिस्सा है? ये इन्होंने खुद बनाई है साजिश या ये किसी साजिश का हिस्सा बहुत बनी है? वैलिड क्वेश्चन। हाँ जी। दूसरी बात valid ये कि ये question है कहती आपका है कि सैफी साहब। जज साहब ने मुझे बोला है कि सैफी तूने हलफ देना है। मैं अल्लाह वाहिद की, मैं किसी पे लानत नहीं भेजूंगा, मैं अल्लाह वाहिद की कसम उठा के कहता हूँ जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैंने आज तक बाजी को, ना मुझे बाजी का पता है, ना बाजी का नंबर है मेरे पास, ठीक है, ना बाजी को मैं जानता हूँ, ना मैं किसी और बाजी को जानता हूँ, मैं सिर्फ इन लोगों को टिकटॉक पे जानता हूँ। मैंने आज तक कलमा शहादत पढ़ के मैं कह रहा हूँ कि मैंने आज तक बाजी को कभी कोई कॉल नहीं की, कभी कोई मैसेज नहीं किया, ना मैं इनको जानता हूँ, मैं इनके खिलाफ हूँ और मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ कि मैं इनको अच्छा नहीं जानता, बिल्कुल नहीं अच्छा जानता मैं इनको। इसलिए कि अगर इनको इतना मसला होता ना तो मियाँ साहब का इनके पास नंबर था, ये मियाँ साहब को कॉल करके कहती कि सैफी ने ये हरकत कर रहा है मियाँ साहब, तो ना वो उसको पूछे उसको, या उसको कॉल में ले ले या कुछ भी कर ले। लेकिन इन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ जो गैर अहमदी हैं उनके पास जाके इन्होंने ठट्ठा किया, इन्होंने मजाक उड़वाया अपना भी और जमात का भी, और जमात पे इन्होंने लानते करवाई, अल्लाह पे, रसूल पे, खलीफा वक्त पे लानते करवाई, मसीह मौद अलैहिस्सलाम पे लानते करवाई। सैफी भाई अब बात खत्म करें, सैफी भाई बात खत्म करें, आपने कसम खाई है ना। प्लीज यार, मैं कलमा शहादत पढ़ के कहता हूँ बाजी के किसी भी मामलात में, किसी भी इनके पर्सनल रिलेशंस में या टिकटॉक के रिलेशन में, इनको कोई कालें आती हैं, नहीं कालें आती हैं, लोगों से क्या बातें करती हैं, क्या नहीं करती हैं, कैसी बातें करती हैं, मेरा उनमें, मेरी उनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जी बाजी, आपको पता चल गया, उसने कसम खा लिया, हलफ लिया, हाँ जी, उस सैफी, आप आपके जानते सामने भी उन्होंने नहीं हो दिया। ना उनको, उनमें से किसी को जानते भी नहीं हो ना। मैं बाजी कह रहा हूँ कि किसी बंदे से भी आपका कोई ताल्लुकात है ना, वो पर्सनल है या वो छुपे हुए हैं या सामने हैं, जो हाँ, मेरा अब किसी से मैं कोई लेना बहन देना नहीं है। हूँ। मैं एक किसी मिनट को सवाल अच्छा, करें। अब एक मिनट बात सुनने सफिया साहिबा, अब मेरी एक बात सुने। सैफी साहब ने कसम खा ली और गैर मशरूत कसम खाई, उन्होंने गैर मशरूत तौर पे। अब आप ये बता दें, दूसरा बंदा भी कसम खा लेगा सब, अब आप ये बता दें कि आपको इन दो बंदों पे शक कैसे गुजरा, हालांकि आपने एक रिपोर्ट कर दी हुई है पुलिस में, पुलिस के पास वो आवाज को पहचानने वाले आलात भी हैं, सब कुछ भी है। आपने जो पुलिस को रिपोर्ट दी है, छोड़े, जो पुलिस को आपने रिपोर्ट दी है, क्या आप उसका स्क्रीन उसकी हमें दिखा सकती हैं? वो आपने रिपोर्ट की हुई है। चले यार, की है या नहीं की है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप तो देखने देना, अगर इन्होंने की है, आपने क्या सफिया बाजी वो रिपोर्ट जो की है वो आप दिखा दें यहाँ पर, क्या रिपोर्ट आपने की है। हाँ, ये भी चलें, अब ये भी उनका सवाल वैलिड है, आपके कहने तो वो पे दिखा कसम दें। उठा रहे हैं। सैफी अब भाई आप- ने कसम खा ली है। सैफी भाई ने सैफी से तो करने दे। हाँ सैफी भाई बाजी खुद करें जवाब सवाल, दें। बाजी सवाल करें, सारे चुप करें। जी बाजी करें। सैफी, आप उनको, उनमें से किसी को जानते भी नहीं हो ना। बाजी मैंने पहले अपना बयान, मेरा आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं उसको सुन लें। मुझे मैंने नहीं जरूरत है कहा सुनने की। आपके, हाँ जी, मैंने आपको कहा है कि आपके किसी के साथ भी किसी तरह की भी बात होती है, वो पर आप इसको जानती हैं या नहीं जानती, जो आपको कर रहा है तंग, मैं किसी को नहीं जानता, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी काम में भी। और मियाँ बहुत साहब को मेरा ये बात रब है ना, पता मुझे है, देख रहे हैं ना, सैफी, बस। मियाँ साहब को ये बात पता है, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि अल्लाह ताला आपको जजा दे। आपने ये तीसरे दिन जो है, लाइक चौथा दिन हो गया है, आपने पहली दफा बात की, सफिया साहबा दूसरा बात फोन सुने करती है। ठहर जाए। सफिया साहबा एक मिनट इजाजत दे दें, वो ठीक है, वो उसने कर दिया, उसमें आपको उसका शुक्रगुजार होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी मैं कोई जरूरत बात- नहीं है हमारे। मैं बात नहीं, पूरी मेरी कर बात लेती, सुन लें, सैफी तो आपको बेहतर नहीं होता। है जरूरत। नहीं, सफिया साहबा आपको जरूरत ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने जो कॉन्शियस है ना, जो उनका अपना ज़मीर है, उसके मुताबिक उन्होंने बात की है। आपको शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए नहीं किया वो तो उसने। मैं बेहतर समझती हूँ, हाँ जी। लेकिन ये चीज पर नहीं, इम्तियाज का कॉन्शियस कहाँ है? आपके लिए नहीं किया। अब बात ये है, हमारा जो सवाल आपसे ये है कि आपने एक सवाल किया कि आप कह रही, आपने कहा कि मुझे दो बंदों पे शक है। 112 सैफी साहब तो हो गए क्लियर, अब रह गए 1122 साहब। उनको अब बात आपने- करने दो अब। हाँ, यार एक मिनट ठहर जो यार। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो दो बंदों पे शक किया है, उस बंदे ने पहले सवाल रखा लेकिन उसके बाद कसम भी खा ली, लेकिन आप ये बता सकती हैं कि आपने किस बिना पे इन दोनों बंदों को कटहरे में खड़ा किया? हालांकि वो पुलिस के पास है, उनके पास साइंटिफिकली वो हर चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो साइंटिफिकली हर चीज को देख सकते हैं, उसका एविडेंस ले सकते हैं। उसके बावजूद भी आपने इन दो बंदों को कटहरे में खड़ा किया, उसकी वजह बता सकती हैं आप? अब जवाब जब म्यूट करेंगे तो जवाब देंगे ना प्यारे भाई, आप भी म्यूट करें, कर लिया। बाजी देती हैं। जी इरफान बाजी। भाई, जब ये बात शुरू हुई थी ना,
تو علی اکبر جو ہیں وہ کر رہے تھے بات میرے سے، معذرت کر رہے تھے، تو نیچے 112 تھے اور سیفی تھے. میں نے جو ہے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے ان پہ شک ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ اگر آپ یہ قسم کھا لو. تو یہ شک میں نے ان پہ کسی پہ بھی نہیں کیا تھا. ہاں، ریکویسٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو انیشیل ہوتا ہے نا پولیس کے پاس، اس میں سے آواز کا تھوڑا سا بیس کا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں آئے گا تو میں آپ کو پرائیویٹ میں وہ رپورٹ ساری بھیج دوں گی. اور اللہ یہ معاف جو ہوتا کرے، ہے آپ سے کبھی بھی پرائیویٹ میں ہم بات نہ کریں، ہماری توبہ. عمران خان سے ہوتی ہے میری پرائیویٹ میں بات. یہ کون نہیں بول رہا ہے میری اللہ تو معاف توبہ کرے؟ میں تو اس کو بھی چلیں آپ بیوقوف تو نہ سمجھتا ہوں. کریں مبشر صاحب، اب 1122 کو بات ہاں، کرنے دیں، بات شروع کریں سارے. 1122 کے اوپر اس لیے جاتا ہے کہ 1122 گروپ میں تھا، وہ ٹھیک ہے، گروپ میں تھا، اچھا وہ جی، گروپ میں تھا نا، میں تو اس لیے ایسے کسی گروپ میں نہیں تھا جس میں آپ تھی. ٹھیک ہے، آپ پہلی اسی بات گروپ یہ میں آپ تھے. نہیں، ہادیہ باجی تھی. نہیں، جب آپ نے ہادیہ باجی کو کہا تھا کہ ان کی جو فیملی کے ہادیہ باجی ممبرز جو ہیں نا وہ خود ہی مار لیا ہے، اس طرح کی جو بات ہوئی تھی ہاں نا. جی، آپ نے گروپ پہ گنانے اچھا، ہیں کہ آپ نے جو بات یہ کرنی ہے وہ یہ کریں، تو یہ چھوڑیں پھر بات ساری گھما کیوں رہے باتیں. ہیں باتیں؟ اچھا اچھا، پھر اس کا مطلب میں ہادیہ نامی کسی عورت کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے، ایک ہادیہ نامی عورت جو ہے یہاں پہ ٹک ٹاک پہ ہیں، لیکن مجھے یقین مانے یہ میں ابھی سن رہا ہوں کہ وہ کسی ایسے گروپ میں تھی. ٹھیک ہے، جس میں میں بھی تھا. ہاں، میری ایسی ایک عورت کے ساتھ ہوئی تھی بحث. ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ باتیں جماعت کے خلاف کرتی ہوتی تھی اس گروپ میں بیٹھ کے، جماعت کے اکابرین کے بارے میں، جماعت کے نظام کے بارے میں. تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتی ہوتی تھی. مجھے ایک یاد ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ان کا کیا نام تھا. مجھے خدا کی قسم ان کے نام کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ہادیہ باجی وہ ہیں یا کوئی اور ہے، یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے نام لے لیا تو شاید وہی ہوں گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں جی جو انہوں نے حلف مانگا ہے. یہ حلف جو میں ابھی دینے لگا ہوں، ریکارڈ کر لیں جی صفیہ صاحبہ، یہ میں آپ کی پروفائل میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ حلف. صفیہ صاحبہ صرف مائک ان میوٹ کر انہوں کے نے بتا وعدہ دیں. کیا ہے کہ میں لگاؤں گی ضرور، اگر نہ لگائیں گی تو وہ ٹھیک ہے. بھی ادھر ہی ہیں. ہاں، بس ٹھیک ہے، کوئی یہ بات ہے نہیں کہ کریں. اور سیفی عرفان صاحب جٹ صاحب انہیں تو ہم ہی بھر لینے دینا، آپ کیوں بیچ میں بھر کہہ لینے رہے دے، ہیں؟ بھر لینے دے. کہہ رہی ہیں باجی، یہ کہیں ان کو میں لگاؤں گی. باجی ان کو عرفان بھائی کہیں میں میں لگاؤں کتنی گی. دفعہ نہیں تو کہوں ہم لگاؤں جٹ گی صاحب لگاؤں ٹھیک گی ہے ٹھیک لگاؤں ہے گی ٹھیک لگاؤں ہے گی. جی، خدا ٹھیک ہے کے لیے جی، جان چھوڑ دو. ٹھیک ہے جی، امتیاز اتنا ٹھیک ہے جی، دماغ ٹھیک کھاتے ہو، پاگل کر دیا ہے. 3 دن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، ابھی ختم ہونے لگا تھا. میں یہ کام پہلے دن ہی کر دیتا. ٹھیک ہے، اگر میں نے یہ ساری چیزیں سامنے نہ لانی ہوتی کہ یہ جو اتنی محبت کرتی ہیں اپنے بھائی سے، یعنی کہ سیکر سے، اور وہ کتنی نفرت کرتا ہے حضرت مسیح موعود سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دین اسلام سے، وہ کتنی نفرت کرتا ہے اور کتنی گستاخیاں کرتا ہے دبے لفظوں میں. اور واٹس ایپ کے اندر جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ اپنے خود ہی اس کے بھائیوں نے ریکارڈنگ آپ کو سنائی ہوگی. عرفان آپ بھائی لوگوں نے چلوں بھی پھر میں سنی جاتی ہوں، ہوگی. سو کے اٹھ کے ٹھیک ہے، آؤں گی، تب میں بھی جانے بول رہا بس ہوگا. میں دینے لگا ہوں. یہ پھر بھی میں بول رہا دینے ہوگا. لگا میں ہوں. چلی جاؤں گی نا، ہاں، صبح اٹھوں گی اچھا، نا، پھر بھی بول رہا لگا ہوگا. ہوں. دینے لگے میں باجی. دینے لگا ہوں. چلو شروع کر یار، جو ختم کر. میں سیفی صاحب نے کہا ہے میں لانتے نہیں ڈالتا. وعلیکم السلام. سیفی صاحب نے کہا ہے میں لانتے نہیں ڈالتا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں. میں بھرپور منہ توڑ جواب دوں گا سیکر صاحب کی بات کا. ٹھیک ہے جی، میں پہلے صفائی دیتا ہوں اپنی کہ میں نے کبھی بھی نہ صفیہ صاحبہ کا نمبر سیو کیا ہے، نہ کبھی کال کی ہے، اور نہ ہی ایسی گندی حرکت کرنے والے بندے کو انسان سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میری اپنی صفائی تھی کہ میں نے کبھی نہیں ایسا کام کیا، غلیظ کام کبھی بھی. یہ صرف صفیہ صاحبہ کے لیے نہیں، سارے ایک کے لیے ہے کہ کسی کے ساتھ میں نے ایسا کبھی غلیظ حرکت نہیں کی. باقی جو جس نے کیا ہے، حلفیہ طور پہ کلمہ شہادت پڑھ کے میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ چیز قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اور نہ ہی میں ایسے کسی بندے کو جانتا ہوں جس بہت نے یہ شکریہ، کام کیا جزاک اللہ ہو. عرفان بھائی. اللہ حافظ، شاباش.